Okay, so now that we're done with the mouth, what we're going to start off with is esophagus. So again, what is esophagus? Esophagus is a muscular tube that does what? That connects the mouth with the stomach. ठीक है? अच्छा, अब before we talk about the esophagus in detail, एक बात याद रखिएगा. So I'm just going to pull that picture one more time. किधर गई? It's right here. Okay. Now, if you were to look at this particular picture right here, तो ये वाला जो region है हमारे पास, this is the neck. ठीक है? हमारी neck के अंदर there are two basically tubes. There are two tubes basically. एक आगे होती है, the one that we can feel, that's not where the food goes, right? Uh, that's the trachea, that's the windpipe. Mustafa, I will better. That's the windpipe. ठीक है? ये आगे वाला जो हमारे पास ट्यूब जा रहा है, ये हमारे पास क्या है? विंड पाइप. इसे हम लोग और क्या कहते हैं? ट्रैकिया. उस ट्रैकिया के पीछे, राइट, वी हैव अ ट्यूब राइट हियर दैट वी कॉल एज द ईसोफेगस. अब होता क्या है कि if anything, I don't want any food or even a drop of water to go into the trachea. Why? Because it's going to initiate the choking reflex. हम उर्दू में कहते हैं कि भाई हमें फंदा लग जाता है. ठीक है? We start choking very violently if something goes inside. कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते, while I would be teaching, while I would be in the flow, I would, if I would inhale and I would just, swallow some of my own or inhale some of my own saliva. So what happens is एकदम से खांसी शुरू हो जाती है. Now, to prevent that, what we have right here is a small flap, right here. इस तरीके से flap होता है. इस flap को हम लोग क्या कहते हैं? Epiglottis, right? So I want you guys to do one thing for me. I want you guys to put your hand on your throat and try to swallow. So if you're going to swallow, what happens? What happens? What do you feel? Do you feel something moving? Uh, आएंगे मिनाइल, आएंगे, उस पर भी आएंगे. राइट. तो मुसद्दिक कैसे मूव करती, किधर मूव करती? whatever you felt move, whatever the movement that you felt, where it go? Right. So we feel the neck moving upwards. देखो अगर हम लोग swallow करेंगे ना, तो वो किधर जाएगा? While you're swallowing, it goes upwards. Right. ठीक है. अच्छा, नहीं नहीं, वो तो एक अलग चीज है. Now what happens is whenever you try to swallow, whenever we try to swallow, very good, Aisha. What happens is as the neck muscles move upwards, drag the neck upwards, ये जो हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है ना, ये क्या करता है? ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाता है. Now, as it's depressed, so let me get this way. Initially, हमारे पास एपिग्लॉटिस जो है, वो कैसा है? It's like this. But whenever you're swallowing, ये किधर डिप्रेस हो जाएगा? ये नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाएगा और किसको कवर कर लेगा? It's going to cover the trachea, right? So that whatever the food that you are swallowing, एक minute. So now, whatever the food that you were swallowing would not go into the trachea, but would go back into the esophagus. All right. So again, the epiglottis का कह रहा है, it's as you guys told me, कि sir, it's covering the trachea during the swelling mechanism so that the food does not go into the trachea. All right. Very good. So Aisha said, sir, so that we don't swallow the food and it does not go, so that it does not go into the windpipe. Easy? Acha.
अब होता हमारे पास क्या है, हमने एक बात पढ़ी थी बिल्कुल शुरू के अंदर कि ऑल द वे फ्रॉम द ईसोफेगस टिल द रेक्टम आर डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं कुछ नहीं होता, our digestive system or our alimentary canal, the system is wrong to say, is made up of what? It's made up of smooth muscles. Smooth muscles हमारे पास कैसे होते हैं? Involuntary muscles होते हैं. Now, while we talk about the smooth muscles again, इसको एक बार और देख लेते हैं. So again, what are smooth muscles? Smooth muscles are involuntary muscles. Involuntary muscles का मतलब क्या हुआ कि मुझे इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करवाना पड़ता. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग देम. ये खुद ब खुद हो रहा है. Which is a good thing because I don't have to be concerned कि at what time of the body time at what time the मेरा फूड बॉडी के कौन से वाले पार्ट के ऊपर है. एज इन द स्टमक, अगर स्टमक में है तो ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे पुश क्यों नहीं हो रहा. ये मेरी बॉडी, ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम खुद ब खुद कर लेता है. नहीं नहीं, वो सलाइवा कभी कभार अंदर चले जाता है ट्रैकिया के अंदर. राइट. देखो, यू कैन नॉट स्वेलो एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम. ट्राई करो. ट्राई टू स्वेलो एंड ट्राई टू ब्रीथ एट द सेम टाइम. यू वोंट बी एबल टू डू दैट. अच्छा जी. तवे करिए. रब ने कहा. ओके. अच्छा, अब देखो. अब जिस तरीके से मेरे पास वो मसल्स जो मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. For example, my facial muscles, which are allowing me to speak, allowing me to make expressions. The muscles in my hands are allowing, that are contracting and relaxing, allowing me to write. ये मेरे control के अंदर है, right? These muscles are called as striated या फिर skeletal muscles. जो voluntary muscles होते हैं ना हमारे पास, they're called as what? They are called as skeletal muscles. And we have different, so all the voluntary muscles are skeletal muscles and we have different names for them. For example, on our arm, what we have is bicep. Arm ke niche, right here, under what we call as an arm, we have the triceps. ऐसा तो अब इन दोनों के अलग अलग नाम है, right? Makes sense. So we have the bicep and we have the tricep. They're two different muscles. तो इसी तरह, but both of them at the same time, they are what? They're skeletal muscles. They're voluntary muscles. इसी तरीके से मेरे पास अलग अलग नाम के स्मूथ मसल्स भी हैं. Why are we going to call them all as smooth muscles? Is because all of them are involuntary. मेरे पास सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, मेरे पास आई के अंदर, आइरिस के अंदर रेडियल मसल्स भी होते हैं. ठीक है. तो खैर खैर, अब नाउ दूसरी चीज, द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू नो अबाउट इज व्हाट अ ल्यूमेन इज. राइट. ल्यूमेन क्या होता है? मेरी ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन होता है. ट्रैकिया का लूमेन है, राइट हियर. ईसोफेगस का लूमेन है, राइट. लूमेन हमारे पास कैसी जगह है? लूमेन इज अ, इट्स एन एम्प्टी स्फेरिकल स्पेस. खाली गोल सा स्पेस है. डजंट हैव टू बी सर्कुलर, इट कैन बी स्फेरिकल. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा. सो इट्स एन एम्प्टी स्फेरिकल स्पेस through which fluids can pass through. Now, this fluid does not mean liquids. Air भी fluid है, right? Semi-solids are also fluid. ये बात याद रखिएगा. तो सिर्फ हमारे पास liquids fluid नहीं होते. Air is also fluid. Semi-solids are also fluid. ठीक है. तो अब देखो, अगर मैं कहूँ मेरे पास ये जो एम्प्टी स्पेस है ईसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर, लार्ज इंटेस्टिन के अंदर, रेक्टम के अंदर, ये स्फेरिकल एम्प्टी स्पेस है ना. और तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे ल्यूमेन. ठीक है. सब ल्यूमेन है. एग्जैक्टली. अच्छा.
राइट। अब होता क्या है, हमारे पास इन द एलिमेंट्री कैनाल और अगेन ऑल द वे फ्रॉम द ईसोफेगस टिल द रेक्टम दो तरीके के स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्मूथ मसल होते हैं? हमारे पास सबसे पहले आते हैं सर्क्यूलर मसल्स और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। व्हाट डू दीज मसल्स डू? सर्क्यूलर मसल्स जो हैं, हमने कहा सर्क्यूलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू डू व्हाट? टू डिक्रीज द डायमीटर ऑफ ल्यूमेन। राइट, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद क्या है? देखो देखो, ऑल मसल्स, तनिषा, ऑल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मुस्तफा बेटे, आई विल टेल यू दैट, डोंट वरी बेटे। आई नो, राइट? ऑलराइट, सो सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, खैर 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 खैर। अब एक चीज देखिए, आई थिंक समथिंग्स देयर एज वेल। ओके, अब एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक ल्यूमेन, एक फॉर एग्जांपल ईसोफेगस जा रहा है, जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लूमेन का जो डायमीटर होगा ना बेटे, वो डिक्रीज हो जाएगा। द लूमेन इज गोइंग टू बी पुश्ड इनसाइड लाइक दिस। ठीक है, अब देखो इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग। अगर प्रीवियसली इस पॉइंट के ऊपर कोई बोलस ऑफ फूड था, राइट, सो फॉर एग्जांपल दिस वाज द बोलस ऑफ फूड, निवाला जो हम लोग निगलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बोलस। अब अगर इसके पीछे से सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस फूड के पास आगे की तरफ एक पुश आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव दिस बॉक्स राइट हियर, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूं, पीछे से पुश कॉन्ट्रैक्ट करूं लाइक दिस सर्कुलरली, तो ये किधर गया? इट मूव अहेड, राइट, इट मूव अहेड, इसको एक पुश आया। तो इसी तरीके से जब हमारे पास इसको यहां देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग एक बार। इसको हम यहां ले आते हैं, इसको हम इसके बराबर में रखते हैं। So you see what's happening is that when these circular muscles are going to contract at a particular point like this, what's going to happen to the bolus? The bolus is going to be pushed ahead, right? बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा? The circular muscles contract to decrease the diameter of the lumen to push the food ahead, right? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, दूसरे मसल्स हमारे पास जो होते हैं, they are called as longitudinal muscles. What would these muscles do? What would these muscles do? They contract to decrease what? The length of the lumen. They contract to decrease the length of the lumen. So, क्यों? Why are they doing that? So, they can pull the food ahead. अच्छा सर, why are they pulling the food ahead when they're relaxing? ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कब कब ऐसा होगा। हम लोगों ने कहा as they relax। अब इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो। Again, let's take the very same picture right here.
ये मेरे पास, this was the esophagus, this was the food, right? अब देखो होता क्या है हमारे पास, what basically happens is, when the longitudinal muscles are going to contract, when the longitudinal muscles are going to contract, ये क्या करते हैं, ये लूमेन का जो लेंथ होता है ना उसको छोटा कर देता है, लूमेन के लेंथ को छोटा कर देता है। ठीक है, कहने का मकसद क्या हुआ, अब ये कैसा दिखेगा, अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो पहले कितनी बड़ी लेंथ है ना इसकी, अभी क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली इट वाज लाइक दिस, अभी कॉन्ट्रैक्ट होके पीछे की तरफ आ गया, और उसने फूड को क्या कर लिया है, टाइटली ग्रिप कर लिया है, लाइक दिस। सो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल इतना बड़ा था यहां से लेके यहां तक, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करा तो इसका लेंथ छोटा हो गया, और वट एवर द फूड दैट वाज प्रेजेंट उसने उसको टाइटली क्या कर लिया, ग्रिप कर लिया, फोल्ड्स आ गया ना, लाइक दिस, इट फोल्डेड अराउंड द फूड पार्टिकल, राइट? मेक सेंस? अब जब अब दोबारा इसको देखो, इस वाली डायग्राम को दोबारा देखो, अब जब यही वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेगा, जब यही वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेगा, देखो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इट हेल्ड ऑन टू द फूड वेरी टाइटली, राइट? अब जब ये रिलैक्स करेगा तो ये अपने साथ साथ फूड को क्या करते हुए ले जाएगा, पुल करते हुए ले जाएगा। अब देखो दो चीजें हो रही, मैकेनिज्म साथ साथ चल रहा है, जितनी देर के अंदर सर्कुलर मसल्स फूड को आगे की तरफ पुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक दिस, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स होके इस फूड को क्या करेंगे, आगे की तरफ पुल कर लेंगे, राइट? मैं समझाता हूँ, गिव मी अ मिनट। व्हाट्स गोना हैपन नाउ इज, अब जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल दोबारा रिलैक्स करके अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे ना, इनके पास ये जो फूड का बोलस था, ये भी इनके साथ साथ आगे की तरफ क्या होता हुआ चले जाएगा, खिंचता हुआ चले जाएगा। मेक सेंस? ये वाली बात सबके समझ समझ में आ रही है? Does everyone get the mechanisms of both the muscles? Okay, Tanisha does. अच्छा मिनाहिल, लूमेन क्या होता है? लूमेन इज एनी एम्प्टी सर्कुलर स्पेस जहां से फ्लूइड्स पास कर सके। ईशा, ओके, both of them make the bolus move quicker, exactly मेरा बेटा, exactly बेटा। अच्छा अब वो कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, लाइव कैरी समझ आ गया, ओके। अब इसको एक बार दोबारा देखो, मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस बिफोर आई एक्सप्लेन इट दोबारा बस एक आखिरी चीज देख लो। हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं, ये डेफिनेशन याद कर सकते हो कर लो, नहीं करनी नहीं करो। वी हैव एंटेगनिस्टिक मसल्स। डू वी नो व्हाट एन एंटेगनिस्ट इज? एंटेगनिस्ट इज अ विलन, राइट? एंटेगनिस्ट, वेरी गुड आयशा बेटे, एंटेगनिस्ट इज द हीरो, ठीक है? नहीं बहुत सिमिलर क्यों है, देयर इज अ रीजन तनिषा व्हाई दे आर सिमिलर, देयर इज अ वेरी गुड रीजन व्हाई दे आर सिमिलर। ओके, ऑलराइट, अब देखो होता क्या है, just let me go through the questions first. ओके, देखो अब होता क्या है, अब इस पे दोबारा देखो। एंटेगनिस्टिक मसल्स वो होते हैं, those muscles which are in a pair, which exist in a pair, and when one of the, so we have two muscles in a pair, right? Muscle A and muscle B. When muscle A will contract, muscle B will relax. When muscle B will contract, A will relax. ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक साथ रिलैक्स नहीं कर सकते। So whenever muscle A contracts, muscle B would relax, muscle B is going to contract, muscle A would relax, ठीक है? So what are antagonistic muscle? हम लोगों ने कहा these are muscles in a pair where
when one muscle contracts, the other relaxes. ठीक है, अब देखो कहानी क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है। ये मेरे पास बोलस है, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। अब मेरे पास इनिशियली सर्कुलर मसल रिलैक्स हुए हुए, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, इसको दोबारा देखो, सर्कुलर मसल अभी रिलैक्स्ड है, लॉन्गिट्यूडनल मसल ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो लूमेन है उसका डायमीटर क्या कर रहा है, उसको छोटा कर रहा है। व्हेन द सर्कुलर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो लूमेन का डायमीटर क्या होता जा रहा है, हमारे पास छोटा होता जा रहा है, राइट। सो लूमेन इज एन एम्प्टी स्पेस। आई गेस यू गाइस कैन सी दिस स्पेस इन माय हैंड, राइट। दिस पर्टिकुलर स्पेस इन माय हैंड लाइक दिस, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मेक सेंस। और इसकी वजह से फूड आगे की तरफ पुश होगा। अब देखो, मेरे पास सर्कुलर मसल्स रिलैक्स स्टेट के अंदर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को आगे पुश कर रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करके, इसको इस तरीके देख लो। जब सर्कुलर मसल फूड को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे पुश कर रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या कर रहा होगा, उसको रिलैक्स करके आगे की तरफ पुल कर रहा होगा। यहाँ एक पुशिंग और पुलिंग मैकेनिज्म चल रहा है। द सर्कुलर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, pushing the food ahead. The longitudinal muscle at the same time are relaxing, pulling the food ahead, right? Yes, 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 Fatma. Very good, Fatma. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे बेटे। अब ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस मूवमेंट इज व्हाट वी कॉल एज पेरिस्टल्सिस। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा पेरिस्टल्सिस। सो व्हाट इज पेरिस्टल्सिस? ये कैसी मूवमेंट है, जिस तरीके से हमारी हार्ट बीट्स एक रिदम में आ रही है ना, ये भी एक रिदमिक मूवमेंट है। तो हमने कहा पेरिस्टल्सिस इज द रिदमिक व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ circular and longitudinal muscles. क्यों? In order to pull the food ahead, कि ये फूड को आगे की तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं। या पुल के बजाय प्रोपेल भी लिख सकते हैं हम लोग, आगे की तरफ मूव करवाना, या मूव लिख लो तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, मेरे पास इसका लेंथ इतना है ना, अभी ये क्या हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, फूड को आगे की तरफ पुश कर रहा होगा, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होते होते इसको आगे की तरफ पुल कर लेगा। मेक सेंस, राइट। वेरी गुड, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो इंशाल्लाह विल स्टार्ट विद द स्टमक। आई होप यू गाइस हैव अ गुड डे।